Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science class 7 history our past volume 2nd. Okay, and students, today we have to start from chapter number 8, devotional paths to the divine. And students, this is video 1, all right? This is video 1. So let's start student. Devotional path to the divine. Okay, so devotional path means धार्मिक मार्ग to the divine भक्ति का. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईश्वर से अनुराग या ईश्वर से प्रेम भक्ति. ओके, You may have seen people performs rituals of worship or singing bhajans, kirtans or kavvalis or even repeating the name of God in silence, and noticed that some of them are moved to silence. Okay, some moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. Alright, so you may have seen people perform rituals of worship, alright, or singing bhajan, kirtans or kavvalis or even repeating the name of God in silence. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पूजा पाठ करते हुए लोगों को देखा होगा कई बार. ठीक है, और वे पूजा पाठ कैसे करते हैं? भजन, कीर्तन, कव्वाली गाते हुए या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए आपने लोगों को देखा होगा. ओके, एंड नोटिस्ड दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स. ओके, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग भगवान के आगे कुछ इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आँखों में आंसू भर जाते हैं. सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ द लीगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century. ओके, सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century. ओके, ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है. ओके, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. अब हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर, सुप्रीम गॉड मीन्स परमेश्वर का विचार. हम क्या पढ़ेंगे अब? परमेश्वर का विचार. क्या परमेश्वर का विचार है? बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, emerged different groups of people worship their own gods and goddesses. As people were brought As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas begin to develop. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The beliefs that social privilege came from birth in a noble family or high caste was the subject of many learned texts. Okay, before large kingdoms emerged. तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले different group of people worship their own gods and goddesses. ठीक है, तो लोगों के जो अलग अलग समूह थे उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा की. ओके, As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. तो जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे. ठीक है, तो न्यू आइडियाज़ बिगिन टू डेवलप, नए नए विचार आए, विकास हुआ उनका. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्म
performing good deeds and bad came to be widely accepted. Okay, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं. सिमिलरली द आइडिया, इस प्रकार जो आइडिया था, जो विचार था, that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. Okay, इसी प्रकार यह विचार भी गहरे ढंग से बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते. द बिलीव दैट सोशल privilege came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. Okay, तो यह सब लोग यह इस विचार को मान बैठे कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं. यह मान्यता है कि जो सामाजिक विशेषाधिकार होता है किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं. कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का यह विषय था. ओके, तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे. जब लोग नगरों व विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं. ओके, और इस प्रकार यह विचार भी बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं. तो यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं और कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का यह विषय था. ओके, Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. Okay, many people were uneasy with such ideas. All right, अनेक लोग इस विचार के कारण, uneasy means बेचैन थे. तो चलिए पहले हम इंग्लिश में इस पैरा को पूरा पढ़ लें. So many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of the Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of the Common Era. Okay, many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the साइकिल ऑफ rebirth थ्रू पर्सनल एफर्ट. तो अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था. ओके, others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of the Common Era. Okay, तो कुछ लोग क्या करने लगे स्टूडेंट्स, परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है. ओके, और श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों को, ठीक है, अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा, प्रारंभिक शताब्दियों में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया था कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से यह क्या करने लगा, शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा. ओके,
Shiv, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped, okay, came to be worshipped through elaborate rituals. At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Puran were introduced into the local cults. Okay, eventually the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God. Okay, regardless of their caste status, the idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. Alright, Shiva, Vishnu, Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. Alright, तो जितने भी शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में क्या करने लगा, पूजा जाने लगा, और साथ साथ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा. ठीक है, तो उनको क्या माना जाता था, शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाता था. इन द प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में, ठीक है, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुरान्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स. ओके, इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक गाथाओं के अंग बन गए. ठीक है, क्या बन गए, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए. और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें भी लोकल कल्ट्स में, लोकल यानी स्थानीय पंथों में भी उसे अपनाया जाने लगा. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. Alright, so eventually the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. Okay, आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है. ओके, और भक्ति की जो विचारधारा है इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतों वाले लोगों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नायनार्स एंड अलवर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर थोड़ा सा इंक फैल गई है, यहाँ पे कट हो रखा है. Anyway, we will read. The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by the Nayana saints devoted to Shiva and Alva saint devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Puliyar and the Panaras. Okay, they were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the values of bhakti. The Nayanars and Alvas went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. Okay, a new kind of bhakti in South India. दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार के द्वारा. ठीक है, तो जो ये दो सैंट थे नयनार और अलवार. ठीक है, so the 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by the Nayana saints devoted to Shiva and Alvars saint devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchables like the Puliyar and the Panars. So, ठीक है, तो 7वीं से 9वीं शताब्दी तक के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ. इन आंदोलनों का जो नेतृत्व था
नयनारों यानी शैव संत और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। ओके, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ऑलराइट, जिनको कि अनटचेबल्स कहा जाता था, पुलियार और पनार, तो ये जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे। पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी मीन्स कि जो छोटी जात दलित वर्ग जिनको समझा जाता था। दे वर शार्पली इन क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स। ओके, दे वर शार्पली Buddhist and Jains and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। ओके, तो ये लोग, ठीक है, तो ये लोग जो थे वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, यानी सैल्वेशन, मुक्ति का मार्ग बताते थे। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट example of Tamil literature composed during the early centuries of the common era and blended them with the values of bhakti। ओके, और इसके साथ साथ उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित उसमें समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ओके, the Nayanars and Alvar went from place to place composing exquisite poem in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। तो जो नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कैसे साधु संत थे? घुमक्कड़ थे, जो हर स्थानों पर जाकर उपदेश या अपने प्रवचन देते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ओके, नाउ फिगर 1, अ पेज फ्रॉम अ साउथ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत गीता। यहाँ पर भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है जिसे आप ऊपर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स रिसॉल्विंग वाइडर एक्सेप्टेंस इवन टुडे। कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल्स अराउंड यू? ओके, तो स्टूडेंट्स आप भी स्थानीय मिथक और किस्से कहानियों को, इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? तो कोशिश करिए। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, नायनार्स एंड अलवार्स, ठीक है, नयानार और अलवार संत के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स दी गई है। हम पढ़ेंगे कि नयानार और अलवार संत कौन थे, ठीक है, और ये क्या करते थे, किस प्रकार की भक्ति का इन्होंने प्रदर्शन किया। सो लेट्स रीड स्टूडेंट। There were 63 Nayanar who belonged to different caste backgrounds such as potter, untouchable, worker, peasant, hunter, soldiers, Brahmins and chiefs. The best known among them were Appayar, Sambandar, Sodarar and Manikakavasagar. There are two sets of compilations of their songs, Tevaram and Tiruvakam. Okay. So students, there were 63 Nayanas who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchables, worker, peasants, hunters, soldiers, brahmanas and chiefs। ठीक है, तो कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। ठीक है, किस किस में पैदा हुए थे नयनार? कुछ लोग कुम्हार में, पॉटर मीन्स कुम्हार, अनटचेबल मीन्स अस्पृश्य, वर्कर्स मीन्स कामगार या कर्मचारी, पीजेंट मीन्स किसान, हंटर्स मीन्स शिकारी, सोल्जर्स मीन्स सैनिक एंड ब्राह्मणास ब्राह्मण एंड चीफ मुखिया में पैदा हुए थे। मुखिया जैसी अनेक जातियों में ये पैदा हुए थे। द बेस्ट नोन अमंग दैम वर अपर संबंदर, ठीक है, अपर संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। ठीक है, माणिक्य सागर। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, वे हैं अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। देयर आर टू
sets of compilations of their song तेवराम एंड तिरुवक्कम. ठीक है, तो उनके गीतों के दो संकलन हैं स्टूडेंट्स, दो कॉम्पिलेशन में संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम. ठीक है, तिरुवाकम. देयर वर 12 अलवार्स हु केम. ठीक है, देयर आर 2 अलवार्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, द बेस्ट नोन बीइंग Periyalavar, his daughter Andil, Tonda Radipodi, Alvar and Nammavalar. Their songs were compiled in the Divya Prabandham. Okay, तो जो अलवार संत थे, देयर वर 12 अलवार्स. ठीक है, अलवार संत संख्या में 12 थे. ठीक है, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, जो अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे. ओके, और उनमें से द बेस्ट नोन बीइंग, जो उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, वे क्या थे? पैरी या अलवार. ठीक है, पैरी या अलवार थे, और उनकी पुत्री थी जिनका नाम अंडाल था, एंड तोंदर रडीपोडी, तोंडर डिपोडी अलवार. ठीक है, तोंडर रिपोडी अलवार और नामावलवार. ठीक है, नम्मालवार. देयर सॉन्ग वॉज कॉम्पाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम, और उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं. Alright students, now today class is over students. Tomorrow I will be back with second video of this chapter. Alright, so thank you so much students.